ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਾਊਂਡਰ ਐਂਡ CEO ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ 15 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਫੀ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਮਚ ਨੀਡਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਸਨ ਐਂਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ rather than just focusing on one department। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟ ਵਾਸ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਫੇਸਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਇਨ देयर ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਰੋਲਸ ਆਲਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੰਦ ਲਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬਿਕਮਿੰਗ MLA ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ MLA ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸੀਅਤਾਂ, ਕੁਝ ਸਕਿੱਲ ਵੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ। ਸਰ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ। ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗੇਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ। ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਰਟਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਲਈ, ਹੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਨਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਬੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ 2-4 ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਰੈਕਟਰ ਆਲਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਡਿਡਨਟ ਪੈਨ ਆਊਟ ਵੈਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਸਕਿੱਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਹਾਓ, ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਆਈਡੀਅਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਹਾਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦੀ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਜਸਟ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਰਾਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ MLA ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮੈਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕੀਪ ਅ ਸ਼ਾਰਪ ਆਈ ਔਨ ਕਿ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਲੈਕ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ them ਔਨ ਟਰੈਕ। ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵਾਲੇ ਡਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਚੂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਕਰਨ। ਵਰਚੂ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਲਈ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਸ ਸੈਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਦਕੋ ਕਰਾਣਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੁਵਰਡਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕੇਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਸਲੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਫੇਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਪੇਨ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ 50,000 ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਝੇਲਣ ਲਈ ਬਿਲकुल तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीट में एक स्नेह यात्रा निकालने का आह्वान की है और उसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि विभिन्न वर्गों के लोगों को स्नेह से जोड़ना। कितना कार्यशील ये फैसला? देखो, अगर दिस इज द राइट काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो हमें हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव से चाहिए होती है, जो हमारे इस वक्त टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ही लीड्स द नेशन। और इस तरह की प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स मेरे को लगता है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली जो देश हमारे को बदनाम करने में लगे हुए हैं उनके लिए भी एक बिल्कुल ही उपयुक्त आंसर है ये, और इंटरनली भी जो फोर्सेस हमें तोड़ने में लगी हुई हैं। देखो, जब आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो, जब आप बोलते हो कि इसके साथ समहाउ बुरा हुआ था तो आज इसके साथ ये एक्स्ट्रा बेनिफिट कर दो, तो आप लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करते हो। तो मेरे को लगता है कि यही एक तरीका है कि जब हम समझें, और इसके लिए सबसे ऊपर हमें एक नेशन बेस्ड हमारी एक विजन होनी चाहिए। हमें सबसे ऊपर अपनी वैल्यूज में, जिसकी हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे ऊपर हमें अपने देश को रखना होगा। जब हम अपने देश को सबसे ऊपर रखेंगे तो हम अपने आप को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड नहीं करेंगे। हमें ये नहीं लगेगा कि भाई हम इस कम्युनिटी से हैं या इस रिलीजन से इसलिए हम अलग हैं, तो हम अपने आप को एक समझेंगे। हमें अगर आपस में कंपटीशन भी करना है तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज सबके पास सेम होना चाहिए, और हमें यह भी इंश्योर करना है कि जो हमारे जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनका जो ध्रुवीकरण किया जाता है, जो उनमें पोलराइजेशन जिसे कहते हैं की जाती है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सर्टन देयर ओन लीडर्स फ्रॉम दोज कम्युनिटी। वो उनको अगर ये फील कराएंगे कि आपका धर्म या आपकी कम्युनिटी खतरे में है, तो लोग एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, फिर वो उससे ऊपर नहीं सोच पाते, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी से ऊपर नहीं सोच पाते। तो मेरे को लगता है कि
अगर हमारे पीएम ऑफिस से ये मैसेज आता है और अगर वो जो रूलिंग पार्टी की तरफ से ये मैसेज सबको जाता है कि वी आर वन एंड वी हैव टू बिल्ड वन नेशन, तो मेरे को ये लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने सबसे पहले तो हमें इसको पहले दिन से ही जो ओपोजिशन पार्टीज करती हैं हर नए इनिशिएटिव को शख्सी नजर से लोगों को दिखलवाना शुरू कर देती हैं कि असल में आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। उससे क्या होता है कि लोगों में एक्सेप्टेंस बड़ी स्लो होती है। मेरे को ये लगता है कि हर वर्ग के पॉलिटिशियन से, पर वो क्यों करेंगे? अगर वो ऐसा कहते हैं तो वो जो पावर में पार्टी है उसको और सपोर्ट देते हैं, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि इसको अपोज करना अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम इस फिलॉसफी को अपना लें, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट ना रह जाए, ये हम जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे अंदर डाइवर्सिटी इन यूनिटी थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं थी। हम एक देश थे, फिर भी हम अपने आप को अलग अलग तरीके से देखते थे और हमने अपने आप को अलग अलग रंगों में बांट रखा था, अलग अलग धर्मों में बांट रखा था। उसका काफी कारण था हमारी जो पहली पॉलिसीज थी, जिसमें एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का बेसिकली एक्सप्लॉयटेटर दिखाया जाता था, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट दिखाया जाता था, या हम अपने आप में ये कहते थे कि हमारा ही तरीका बेटर है, बाकी और कोई तरीका नहीं है जी, किसी भी तरह से भगवान को पाने का। तो जब हम इस तरह की सोच से निकलेंगे और जब व्हेन वी विल थिंक ऑफ अस एज वन नेशन, तब हमारे में यूनिटी इन डाइवर्सिटी आएगी। अभी तो हम यूनियन ऑफ नेशंस, यूनियन ऑफ स्टेट्स जैसे वो बोल रहे थे और हम एक देश थे, इसके कारण हम पर फिर भी हम अलग थे। आज एक टाइम आ गया है कि हम वाकई डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी लेके आए, और वो तभी होगा जब हम हर चीज से ऊपर अपने देश को रखेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने सर बीजेपी के सांसदों को सीखने के लिए कहा है बड़ी पार्टी की गलतियों से। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियों ने काफ़ी समय भारत पे शासन किया और अब टर्मिनल डिक्लाइन पे है, और विपक्ष पे निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि लोग अब डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स से परेशान आ चुके हैं। बिल्कुल, देखो ये एक आप उत्तराधिकारी बन जाओ किसी पार्टी के, ये अपने आप में बेस्ट टैलेंट को रोकता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व अपने बेटे या अपनी फैमिली में से किसी को देना है, तो इसका मतलब है कि आपको टैलेंटेड लोगों को दबाना पड़ेगा या अपने पास पूरी पावर कंसंट्रेट करनी पड़ेगी। पावर कंसंट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ चमचों को सही पोजीशन पे रखना पड़ेगा। उसके अलावा खूब पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि आपके पास मनी पावर भी हो, गून पावर भी हो और पॉलिटिकल पावर भी हो। तो इसी तरह से पावर को कंसंट्रेट किया जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर डायनेस्टीज ने ही चलाना है तो फिर हम अपने आप को डेमोक्रेसी क्यों बोलें? फिर तो हम भी अपने आप को मोनार्की बोल दें कि हमारे यहाँ पे राजाओं का ही शासन है, तो प्रैक्टिकली वो राजा ही बन जाते हैं। तो ये एक सही आह्वान है हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि जहां पे भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हो, वो अब लोग ये क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने जस्टिफाई करना है, तो क्या किसी पार्टी चीफ का बेटा या बेटी टैलेंटेड नहीं हो सकते हैं, पर वो अपना टैलेंट कहीं और दिखाएं। ये बिल्कुल ही हमें सिरे से निकाल देना चाहिए कि जहां पे किसी भी पार्टी के जो चीफ हैं उस पार्टी में सिर्फ अपनी फैमिली के लोगों को ही जगह दे दें, तभी एक प्रोग्रेसिव और वाइब्रेट डेमोक्रेसी बनेगी। और ये एग्जाम्पल अगर सीख ले बीजेपी, तो वो ऑफ कोर्स जिस पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो उस तरह का भविष्य से वो बच सकते हैं। तो ये मेरे को लगता है एक अच्छा लेसन है, और ये लेसन सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी होना चाहिए कि हमें अगर एक ट्रू डेमोक्रेसी बनानी है तो हम ये जो हीरो वर्शिप से हटे कि भाई अगर कोई मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है तो उसके बेटे को भी हम बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर ही मान लेते हैं, उसको भी हम वैसे ट्रीट करते हैं, उसको ऑफिसर भी वैसे ट्रीट करते हैं। जी चीफ मिनिस्टर का बेटा है, उसके सामने आईएएस अफसर भी वैसे ही चलेंगे फिरेंगे, उसके सामने बाकी अधिकारी भी ऐसे चलेंगे जैसे बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर है। तो फिर उनको लगता है कि अब आगे हम ही बनाते हैं जी। तो मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड लेसन, और हर जगह पे मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, रदर देन कि भाई आपकी क्या बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सही रूल्स नहीं मिलने चाहिए। इसके अलावा सर, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू इनवाइट ओपिनियन फ्रॉम पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन? देखो, अगर आप जो लोग इसके बारे में अवेयर हैं, राइट, नॉलेजेबल हैं, उनसे व्यू मंगाते हो तो ये मीनिंगफुल एक्सरसाइज होगी। अदरवाइज आप ओपन कर दो और करोड़ों लोग कुछ ना कुछ लिखते रहे, उससे आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपको एक कोर कमेटी ऑफ वेरी वेरी विजनरी, और इंडिया क्या ग्लोबली आप लोगों को बुलाओ और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाना चाहिए।
इसमें इंडस्ट्री के लोग हों, एकेडमिया के लोग हों जो इस चीज़ को समझते हैं, इसमें साइंटिफिक कम्युनिटी हो, इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट कम्युनिटी हो, साइकोलॉजिस्ट हों, राइट, इसके ऊपर इसमें कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के भी लोग हों, ताकि हमें देखा जाए कि हमें किस तरह की सोसाइटी बिल्ड करनी है। एजुकेशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी देनी है। एजुकेशन का पर्पस ये भी है कि आप ये सोसाइटी बिल्डिंग में हेल्प करेगा कि आप किस तरह का करिकुलम बनाते हो, किस तरह का फ्रेमवर्क बनाते हो, कि जो हम अभी बात कर रहे थे, हम जितना मर्जी बोलते रहे कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी है, सॉरी, हम जितना मर्जी बोलते रहे कि हमारे यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। अब इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और फिर भी यूनाइटेड रहने के लिए आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि हमारा जो एजुकेशन का करिकुलम सिस्टम होगा वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। क्या हम वैल्यूज की हायरार्की चेंज कर सकते हैं? क्या आज हमारे लिए हमारा देश सबसे ऊपर है? अगर नहीं है, जहां जहां पे नहीं है, तो उसको कैसे कवर किया जाए, ताकि नेशन बिल्डिंग, सर्विस टुवर्ड्स योर नेशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी, रिस्पेक्टिंग फेलो सिटीजन्स, राइट, एंड विलिंग टू मेक सैक्रिफाइस फॉर योर कंट्री, ये आपकी टॉप वैल्यूज बने। ऐसा माइंडसेट हमें अपने यूथ के अंदर इनकलकेट करना है। यही हमारी एजुकेशन पॉलिसी का मिशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जब भी इसके लिए कोई भी इनिशिएटिव लिया जाता है, जब भी हम अपने इंडिक वैल्यू सिस्टम को दिखाने की कोशिश करते हैं, इसको हिटलर की नेशनलिज्म से कंपेयर किया जाता है, जबकि हम बार बार कह चुके हैं हिटलर की नेशनलिज्म थी रेशियल सुपेरिटी, इट वाज रेसिज्म। He was thinking that somehow Aryans are better than everyone else. That has not been part of our Indic philosophy ever. We think everyone is equal. हम सबके सामने हाथ, सबके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम सबके अंदर अपने बराबर या अपने से बड़े चीज को देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इंडिक वैल्यूज को लेके, करंट साइंटिफिक टेम्परामेंट को लेके, एट द सेम टाइम नॉन एक्सप्लॉयटेटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, ना हम नेचर को एक्सप्लॉयट करेंगे, ना हम फेलो बींग्स को एक्सप्लॉयट करेंगे, ना हम किसी और देश के लोगों को एक्सप्लॉयट करेंगे। उस फिलॉसफी के साथ अगर हम अपने लोगों में एक नेशनल पैट्रियोटिक टेम्परामेंट बिल्ड कर पाए, तो दैट वुड बी द आइडियल नेशनल फ्रेमवर्क। जब बंदा इंडस्ट्रियस होगा, पैट्रियोटिक होगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा, वो अपने आप अपने आईक्यू के बेसिस पे कोई फील्ड चून कर लेगा, बच्चा चूज कर लेगा फील्ड, और उसमें अपने आप बेस्ट रिजल्ट्स देगा। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर राजकुमार रंजन का भी ये कहना है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये टोटल गेम चेंजर है, एंड दिस विल ट्रांसफॉर्म द एंटायर एजुकेशन सिस्टम बाय रीडायरेक्टिंग, रीओरिएंटिंग एंड रीअलाइनिंग इट्स प्रोसेसेस। इज इट रियली ट्रू? इफ इट हैपेंस, लुक, ऑन पेपर इट साउंड्स लाइक अ ब्यूटीफुल पॉलिसी, अगर पर उसको इंप्लीमेंट किया जाए, उसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है। अब वो वैल्यूज क्या हैं, उनको डिफाइन करने की जरूरत है। वो वैल्यूज, जैसे हमने अभी 2 बार बात कर चुके हैं, क्या टॉप हायरार्की पे जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू जो है नेशन बिल्डिंग की तरफ है, पैट्रियोटिज्म की तरफ है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और सोशल हार्मनी की तरफ है, और बीइंग इंडस्ट्रियस पर्सन, रिस्पेक्टफुल पर्सन, अगर उसकी तरफ है तो इट इज ट्रांसफॉर्मिंग। अब उसको पेपर पे क्या है और ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके ऊपर डिफाइन होगा। देखो, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट, हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, और अभी तक तो ये लग रहा है कि गवर्नमेंट इज रियली रियली सीरियस इन इंप्लीमेंटिंग इट। पर क्या उस लेवल के रिसोर्सेस आप एजुकेशन में दे पा रहे हो? उस लेवल की ट्रेनिंग और उस कैपेबिलिटी के लोग आप एजुकेशन में अट्रैक्ट कर पा रहे हो? क्या इसके अंदर जो एक एकेडमिया का एक मोनोपोली जो बनी हुई थी एजुकेशन सिस्टम में, उसको भी तोड़ने की जरूरत है। हमें इंडस्ट्री के लोगों को, सोशल साइंटिस्ट को इसके अंदर लाने की जरूरत है। हमें बेसिकली प्रैक्टिकली जो जो एक ग्लोबल विजन के साथ लोगों को बीच में जोड़ने की जरूरत है, तब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगी। सर, इंडिया इज अमंग द टॉप 5 कंट्रीज ऑफ बर्थ फॉर नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। सबसे पहले तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इट मींस इज कि जो इंडिया में पैदा हुए, उनको जब यूएस की सिटीजनशिप मिल जाती है, ग्रीन कार्ड जिसको बोलते हैं, तब वो नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन बन जाते हैं, कि वो वहां पे पैदा नहीं हुए थे पर अब वो वहां के सिटीजन बन गए हैं। तो उसमें सेकंड नंबर पे इंडिया के लोग आते हैं। अब मेरे को नहीं पता कि इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग जी, पर मैं इसके पॉजिटिव्स की बात कर लेता हूं कि इंडियन डायस्पोरा ने वहां पे अपना बहुत नाम कमाया है। यूएस की एक फिलॉसफी रही है, इट गिव्स यू द फ्रीडम टू परस्यू हैप्पीनेस, परस्यू योर ओन करियर्स, एक इक्वालिटी, सर्टन मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम है। और जो एक ग्लोबली कंपिटिटिव और मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम है, उसमें इंडियंस ने अपने आप को नंबर 1 साबित किया है। वहां पे अगर आप में टैलेंट है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। आज वहां पे मीडियन हाउस होल्ड इनकम में, एवरेज हाउस होल्ड इनकम में
सबसे ज्यादा लोग जो हायर एजुकेशन में है, सब पैरामीटर्स पे इंडिया नंबर 1 है। तो इसका मतलब है कि जहां पे मेरिटोक्रेसी होगी, जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, इंडियंस थ्राइव करते हैं। तो अब लेसन इसमें से क्या है, ये है कि क्या हम इंडिया में अपने लोगों को वही इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहां पे सबके पास इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम टू स्पीच एंड ऑफ कोर्स एबिलिटी टू परस्यू हैप्पीनेस। क्या अगर हम इंडिया में दे पाएं तो हम अपने आप ही ग्लोबल बेंचमार्क बन जाएंगे। तो मैं इसमें से ये लेसन सीखना चाहूंगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस हु हैव बिकम, हु गॉटन द ग्रीन कार्ड। ये उनका ड्रीम होगा। जी। सो आखिरी सवाल सर, UK's gun law, new proposed gun law include conduct and character social media check. What do you think about this provision and what difference it can make? It can make a significant difference कि अगर किसी बंदे को, हालांकि somehow अमेरिकन्स को अपने गन राइट्स के ऊपर से बहुत ही प्यार है, उनको लगता है कि गन उनके पास होने चाहिए और सेकंड अमेंडमेंट का उनके पार्ट है, एंड somehow they feel it, उसको वो रिलीजियसली मानते हैं। हालांकि आज के टाइम में वो कितना रेलिवेंट है, दैट इज समथिंग फॉर देम टू डिसाइड। बट देखो, हर बंदे का एक जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो दिखना शुरू हो जाता है, और आज की डेट में टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप उसका सोशल मीडिया बिहेवियर ट्रैक करोगे, तो अगर उसके अंदर एलिमेंट्स नजर आते हैं कि दैट गाय इज प्रोन टू कमिंग टू गन वायलेंस, तो ये रिस्की हाथों से कुछ लेवल तक तो रुकेगा। पर जब बंदे को पता है कि भाई मेरा ये सारी चीजें ट्रैक हो सकती हैं, तो वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा वो भी मैनिपुलेट कर लेंगे। तो आउटराइट बैन इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया, बट स्टिल इट विल कंट्रीब्यूट पीपल हु हैव, क्योंकि आप देखिए जिसका भी इन्होंने देखे, जिनके भी ये केसेस आए हैं हु हैव डन गन वायलेंस, जिन्होंने इनोसेंट्स के ऊपर गोलियां चलाई हैं और हु हैव लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर माइंड, उनका बिहेवियर उनके सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। और आज आप अपने आसपास भी देखें, कई लोगों का बहुत ही एंटी सोशल बिहेवियर है। मेरे को लगता है कि अब प्रीएम्प्टिवली इंडिया में भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि लोग जिस तरह की किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ या टुवर्ड्स आवर कंट्री जिस तरह की पोस्ट डालते हैं, मेरे को लगता है कि इस पर अगर नजर रखी जाए और उनकी क्वेश्चनिंग शुरू हो, और वो लोग जब भी किसी एम्प्लॉयमेंट में भी जाएं या बैंक अकाउंट भी खोलने लगे, तो अब मेरे को लगता है नजर रखनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर है ना, वो रेगुलेट हो जाएगा। हेट से हेट बढ़ती है जब इस एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा बंदा कुछ रिएक्शन देता है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे हम इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दें और ऑलरेडी रेगुलेट करें पीपल हु आर टॉकिंग एंटी सिमेंटिक जो बातें करते हैं, जो एक कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं या अपनी कंट्री के खिलाफ बोलते हैं, या विच एवर थिंग विच इज नॉट इन द पॉजिटिव एटीट्यूड, उस पर नजर रखने की जरूरत है। और उसको समझना चाहिए जब आप किसी को गवर्नमेंट जॉब दे रहे हो या प्राइवेट जॉब दे रहे हो। और आजकल कई कंपनीज थ्रू सर्टन हायरिंग प्रोसेसेस दे आर रेगुलेटिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ पोटेंशियल रिक्रूट्स। तो अब आप सोशल मीडिया पे जो भी लिखते हैं उसको सोच समझ के लिखिए, क्योंकि जो कंपनी आपको हायर करने वाली है वो आजकल उस पर नजर रखती है कि आपका बिहेवियर क्या है जी। तो सोच समझ के वहां पे चीजें डालिए, किसी के खिलाफ हेट मत स्प्रेड करिए, राइट, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया को यूज करिए। So thank you so much for sharing your perspective and meaningful insights, sir. So अगली बार फिर हाजिर होंगे सही जानकारी के सही विश्लेषण के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, and do not forget to subscribe to our channel and download our app. Thank you.